Assalamu alaikum. Let's continue with economic growth. Recession. What is recession? Recession is also known as the economic downturn. Economic growth can be caused by increase in supplies of aggregate supply and aggregate demand. This leads to growth, whereas recession is the opposite of growth, which can be caused by decline in aggregate supply and decline in aggregate demand. Aggregate demand may fall for various reasons, and it's sometimes referred to as a negative demand side shocks. Negative demand side shocks. For example, consumer expenditure and investment would decline due to fall in business and consumer confidence, which arises from global financial crisis or falling house prices in the domestic economy. House price is just one example, right? When the prices of certain things are declining, then it means that the market is going towards failure. It can be a shock to the economy, but it can be in the short run. Sometimes what happens is that prices are declining in the short run, but you can oversee that these are going to improve in the near future. Then that is a time for investment, but that depends on consumer confidence, which comes from observing the economy properly. So when businesses are declining, and you can see that in the long run they are not going to improve, like for the next 6 months or 1 year, then that leads to declined consumer confidence. With decline in consumer confidence and fall in the business or less growth in the business, the expenditure from consumer decreases. The government also cuts back on spending too much, and net exports would fall as a result of rise in the exchange rate. We've already studied that when the exchange rate rises, export declines, right? So the government also cuts back on its expensive because of recession. When they can see that recession is approaching or recession has already approached, so they cut down on their expenditure so as to reduce the aggregate demand and control the supply of money in the economy as well. A decrease in aggregate supply is a negative supply side shock, and it could result from rise in fuel charges or cost of raw materials. Such rise in cost would lead to firms not willing to supply much, and aggregate supply will decline. They will produce less if costs increase, right? So let's look at the graph. This is the graph of a recession caused by change in what? Change in aggregate demand. We can see that the aggregate demand curve has moved towards left, and this is a recession caused by change in aggregate supply. We can say that aggregate supply has moved towards left. Okay, aggregate supply has moved towards left. As a result of the first one, recession caused by decrease in aggregate demand, we can see that the prices have fallen in aggregate demand, and in aggregate supply the prices have increased. तो यहाँ पे तो बात ये है कि भाई प्राइस फॉल की है तो डिमांड तो चीज़ों की बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, डिमांड कम हो गई. ठीक है, ये इस वजह से कम हो गई क्योंकि ये प्राइस रिलेटेड फॉल इन डिमांड नहीं है. दिस इज़ द अदर वे राउंड कि डिमांड कम हो गई तो चीज़ों की प्राइस भी कम हो गई ताकि लोग ख़रीदें. पीपल स्टॉप स्पेंडिंग. ऊपर हमने यही पढ़ा ना, पीपल एंड गवर्नमेंट बोथ स्टॉप स्पेंडिंग. दैट इज़ वाई जब एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होती है तो प्राइसेस नीचे आ जाते हैं. व्हेन एग्रीगेट सप्लाई रिड्यूस होती है तो प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, डिमांड को तो कुछ नहीं हो रहा,
डिमांड तो उतनी है लेकिन सप्लाई कम हो गई तो शॉर्टेज हो जाती है, इस वजह से प्राइसेस ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे सप्लाई तो सेम है लेकिन डिमांड नीचे आ गई है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सरप्लस सप्लाई हो जाती है और सरप्लस सप्लाई में हमेशा क्या होता है, प्राइसेस नीचे आते हैं। सो यू कैन सी द कनेक्शन कि ये अपने बेसिक प्रिंसिपल से डिविएट नहीं कर रही है चीज़। पहले देखने में ऐसा लगता है लेकिन आपको याद रखना है कि जब हम प्राइस रिलेटेड डिमांड की बात करेंगे तो प्राइस गोज अप, डिमांड कम्स डाउन, लेकिन यहाँ पे इट्स द अदर वे डाउन। वी आर टॉकिंग अबाउट चेंजेस इन डिमांड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इन दीज ग्राफ्स। ठीक है, so demand side shock and supply side shock. Demand side shock leads to decline in aggregate demand and supply side shock leads to decline in aggregate supply. Economic growth can be shown using a PPC curve. PPC curve shifts out when there is economic growth and PPC curve shifts inside when there is an economic decline or a recession. क्योंकि आपके सारे factors of production and your potential to produce reduces when the economy is undergoing recession. When the economy is undergoing growth, then potential to produce also improves and increases. इकोनॉमिक ग्रोथ कब हो रही है, जब लोगों के स्किल्स अच्छे हुए हैं, जब नई टेक्नोलॉजी आई हुई है, जब कुछ नया डिस्कवर हुआ है, जब आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल आया है। ठीक है, कुछ भी इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल लीड टू इम्प्रूव्ड पोटेंशियल टू प्रोड्यूस एंड डिक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विल लीड टू डिक्रीज्ड पोटेंशियल टू प्रोड्यूस. What are the consequences of recession? In consequences of recession, of course, aggregate demand and aggregate supply comes down. इसका मतलब है your total output comes down. When total output comes down, क्योंकि businesses spend नहीं कर रहे हैं, business अपना output increase नहीं कर रहे हैं, rather कम कर रहे हैं, तो जब कम करेंगे तो क्या होगा, unemployment will go up. क्योंकि businesses या तो shut down हो रहे हैं या तो अपना आउटपुट को कम कर रहे हैं, दोनों केसेस में लोगों को फायर कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का लो हो जाएगा. ठीक है ना. मल्टीनेशनल एंड फॉरेन कंपनीज से भी जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आएगी बिकॉज दे डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ दैट इकोनॉमी. फॉर एग्जाम्पल, जब रिसेशन होता है तो कोई, अगर ग्लोबल रिसेशन है तो कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाके इन्वेस्ट नहीं करती, रादर दे होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स. होल्ड करके बैठ जाते हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ स्टार्ट होगी या रिसेशन थोड़ा सा सबसाइड होगा तब कहीं जाके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है. अब ऑफ कोर्स बिजनेसेस भी बंद हो गए हैं. जब बिजनेसेस स्टार्ट डिक्लाइनिंग और आउटपुट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग तो टैक्स रेवेन्यू भी नीचे आएगा. टैक्स रेवेन्यू नीचे आएगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा. गवर्नमेंट का मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग टैक्स होता है. जब टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन होगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी डिक्लाइन होगी. इन व्हाट, बेनिफिट्स होना ये चाहिए. ठीक है ना. अब क्या होगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्लाइन होना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट अगर तो अपनी स्पेंडिंग को डिक्लाइन नहीं करती है. ठीक है, क्योंकि लॉजिकल तो ये है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्लाइन होना चाहिए, लेकिन अब जब काम नहीं है तो बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं. अनएम्प्लॉयड है तो क्या होगा जी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिन कंट्रीज़ में होता है वो ऊपर जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो आपकी अर्निंग इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर, यानी कि आपकी एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, अर्निंग कम है. दिस विल लीड टू अ बिगर डेफिसिट. फिस्कल डेफिसिट होगा. ठीक है ना. फिस्कल डेफिसिट होगा. दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस कि फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ टू इंक्रीज ऑन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस and provision of basic necessities. This will lead to a deficit. Second consequence ये होगा कि प्राइस लेवल,
प्राइस लेवल डिपेंड्स, अगर डिमांड साइड शॉक से मिला है तो प्राइस लेवल क्या होगा, नीचे आएगा। ये हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है ना। अगर एग्रीगेट डिमांड की वजह से रिसेशन कॉज हुआ है, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, तो प्राइस नीचे आएगा। अगर डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई से कॉज हुआ है तो प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो जो एग्रीगेट सप्लाई की वजह से इंक्रीज हुआ, वो कॉज हुआ है रिसेशन, वी कैन सी दैट प्राइस लेवल हैज़ गॉन अप। इसका मतलब है दिस इज़ लीडिंग टू इन्फ्लेशन, दिस वन इज़ लीडिंग टू इन्फ्लेशन, वेयर एज डिमांड साइड रिसेशन इज़ नॉट लीडिंग टू इन्फ्लेशन, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस नीचे जा रही है। सो दिस इज़ लीडिंग टू डिफ्लेशन। हालांकि डिफ्लेशन है, चीज़ें सस्ती भी हो रही हैं, बट स्टिल पीपल विल नॉट स्पेंड। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड कम है या एग्रीगेट आउटपुट कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे आ गया है, तो लोग उसको चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ नहीं करेंगे, अपनी कंजम्पशन को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। कुछ मैंने बुक के अलावा यहाँ पे नोट्स लिखे हैं, उनको देख लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड फॉल्स या एग्रीगेट आउटपुट कम होता है जब, तो योर जीडीपी फॉल्स, ठीक है। मोर फर्म्स क्लोज डाउन और गो बैंकरप्ट, मोर अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ चुके हैं हम। इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो फॉल। वाई इम्पोर्ट्स फॉल? आपको ज़्यादा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए इंपोर्ट करने के लिए। वाई एक्सपोर्ट्स फॉल? आपका आउटपुट डिक्रीज हो गया है। एक्सपोर्ट कब इंक्रीज करते हैं? जब आउटपुट आपका बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट स्टॉप्स। वाई? बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एम्प्लॉई बेनिफिट्स, इट हैज़ टू डिक्रीज, लेकिन वो कुछ कुछ केसेस में इंक्रीज़ हो जाती है। अगर गवर्नमेंट ने उसको डिक्रीज़ किया है तो इट विल लीड टू बैलेंसिंग द डेफिसिट, एंड अगर गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज़ किया है तो इट विल लीड टू डेफिसिट फॉर श्योर। गवर्नमेंट उसको रिड्यूस करेगी तो कुछ कुछ केसेस में सरप्लस भी हो सकता है, जो कि रिसेशन में बहुत मुश्किल होता है। सरप्लस नहीं होता, बैलेंसिंग हो जाती है। डिफ्लेशन क्या होती है? चीज़ें तो सस्ती हो जाती हैं लेकिन वेज रेट्स भी लो हो जाते हैं। क्यों वेज रेट्स लो हो जाते हैं? जब आप बहुत सारे लोगों को फायर करोगे तो सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। पीपल हु वांट टू वर्क, क्योंकि रिसेशन में सबको होता है भाई जॉब सलामत रहनी चाहिए, ठीक है। तो एवरीबडी वुड बी विलिंग टू वर्क एट लोअर वेजेस, जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ अपने कॉस्ट को थोड़ा सा कट कर लेंगे मज़ीद। फायर तो लोगों को कर ही दिया है, लेकिन जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी भी कॉस्ट नीचे लाने के लिए लोगों की वेजेस को लोअर कर देंगे, क्योंकि सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ चुकी हुई होगी एंड पीपल विल बी रेडी टू वर्क ऑन लोअर वेजेस। रिसेशन के कॉजेज़ देख लिए हैं, अब हम देखेंगे कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द शॉर्ट रन कैन बी इंक्रीज्ड in aggregate demand. It stimulates the rise of output in the economy. होता क्या है कि टैक्स रेवेन्यू जो है, द गवर्नमेंट कट्स टैक्सेस, corporation tax also, income tax also. That is a measure of government to increase aggregate demand. So when firms are encouraged to produce more, there will be a movement from inside toward the production possibility curve, यानी कि आप अपने true potential पे पहुँचोगे. In the long run, government or the economy experiences economic growth only if the quantity or quality of resources increases. Quality of resources कैसे increase करते हैं? Supply side policy में पढ़ा है हमने, by providing skills and education especially to labor. क्वांटिटी कैसे इंक्रीज़ करते हैं? बाय ब्रिंगिंग इन मोर टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल एंड बाय फैसिलिटेटिंग पीपल टू इन्वेस्ट मोर इन हाई टेक कैपिटल. उसके लिए क्या करना होगा? इंटरेस्ट रेट को लो करना होगा, नेट इन्वेस्टमेंट का साइज़ इंक्रीज़ करना होगा, या तो फिर साइज़ ऑफ लेबर फोर्स को इंक्रीज़ करना होगा. साइज़ ऑफ लेबर फोर्स को इंक्रीज़ करना मुश्किल होता है until and unless a lot of people come from overseas to your country.
तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लिया जाता है बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑल्सो बाय फैसिलिटेटिंग द फर्म्स एंड पीपल टू ब्रिंग इन एडवांस टेक्नोलॉजी. हर इस केस में देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ द पीपीसी, आउटसाइड शिफ्ट टू द outward shift of the PPC. These were the causes. ठीक है ना. Consequences of economic growth क्या होगा? Improved living standards. When more firms will be producing, then there will be more employment, more access to goods and services to people. That is part of improved living conditions. Improved life expectancy because लोगों के पास पैसा होगा to eat good and to take care of their health. In richer economies, people are likely to consume luxury products and have better health care क्योंकि पैसा होता है उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए. जो पुअर कंट्रीज़ होते हैं उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ ऑलवेज लेस. उसका रीज़न क्या होता है कि लोगों की हेल्थ पुअर दो वजह से होती है. एक तो उनके पास पैसा नहीं होता है प्रॉपर खाने के लिए, दूसरा उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट, हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं मिलता है. ठीक है, इस वजह से पुअर इकोनॉमीज़ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लेबर भी ख़राब ही होता है. क्वालिटी ऑफ लेबर का क्या मतलब है? एजुकेशन ख़राब होती है, वो तो होती ही है. बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए पैसा नहीं है तो एजुकेशन के लिए पैसा किधर से आएगा? तो क्वालिटी ऑफ लेबर इसलिए भी ख़राब होता है कि एजुकेशन भी नहीं होती है और एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर भी नहीं होता है. बेसिक नेसेसिटीज़ का एक्सेस भी उनको नहीं होता है. ठीक है. और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इंक्रीज्ड टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट. तो उसमें क्या होता है? इट बिकम्स ईजी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक फाइनेंशियल मेजर्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, टू इंक्रीज हेल्थ केयर प्रोविजन एंड टू रेज एजुकेशन, also to improve standards of living for people without having to raise taxes. Right? Some extra revenue can be used to increase benefits for the poor and to improve their standard of living. Right? Okay. As the economy grows, its political standing also strengthens globally. ठीक है? And voting power at the International Monetary Fund or the IMF, for example, is influenced by the size of countries' GDP. IMF is a body and an international organization which promotes international cooperation and helps countries with balance of payment problems. Means IMF, International Monetary Funds, it provides loans to economies for growth. But India is an IMF free country. They have stopped taking loans from IMF, and Pakistan is continuously indebted by the money taken from IMF, and Allah जाने किधर जाता है वो पैसा, nobody knows that. Economic growth, however, has some costs. If the economy is working at full capacity, there will come a time where resources will be exhausted, right? And resources will be shifted to making consumer goods, shifted from making consumer goods to capital goods. This because the economy needs to grow. This will shift living standards as fewer goods and services will be available for the households. This is only a short-term cost. Why? Because extra capital goods will enable manufacture of more goods, and capital goods are used to manufacture more goods. तो जब वो manufacturing का time आएगा तो more employment आएगा, and then again standard of living ऊपर हो जाएगा. ठीक है ना. Initially the cost is कि standard of living कम होगा क्योंकि unemployment होगी, थोड़ा सा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन क्या होगा? दोबारा से ऑफ कोर्स वो कैपिटल गुड्स को इस्तेमाल भी तो करना है ना फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स. तो दोबारा से एम्प्लॉयमेंट होएगी और दोबारा से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा. वी कैन ऑब्जर्व द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ डिवोटिंग मोर रिसोर्सेज टू कैपिटल गुड्स. जब हम कैपिटल गुड्स को बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स को
कम कर देंगे, लेस रिसोर्सेज, लेस कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल टू पीपल, बट इन द लॉन्ग रन दोनों का प्रोडक्शन, नेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और इम्प्रूव होगा. हाउएवर हायर आउटपुट वुड लीड टू external costs such as pollution and depletion of non-renewable resources. It can also damage natural environment as more factories they will lead to more carbon dioxide production and pollute the environment. Rapid expansion will also lead to destruction of forest because more wood will be required to अगर आपको हाउसिंग जहाँ पे वुड की बनती है वहाँ पे मोर वुड विल बी रिक्वायर्ड, आपको ज़्यादा फर्नीचर की ज़रूरत पड़ेगी तो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है बिकॉज यू विल नीड मोर लैंड टू बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स. ठीक है. डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स भी हो सकता है अगर आप वहाँ पे से वाटर बॉडी को एलिमिनेट करके कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग साइट को वहाँ पे इंस्टॉल करें. ठीक है. तो ये रिस्क्स होते हैं जिसकी वजह से द गवर्नमेंट वुड हैव टू मूव मोर टुवर्ड्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, विच मीन्स दैट दे शुड नॉट एंडेंजर द कंट्रीज एबिलिटी टू ग्रो इन फ्यूचर. अगर आपको ग्रोथ फॉर द प्रेजेंट जनरेशन लेके आनी है एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूचर जनरेशन तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होता. सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स दैट वी डू लीव रूम फॉर ग्रोथ फॉर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल और उनको सफ़र ना करना पड़े. ठीक है. तो सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए. वी शुड यूज़ रिसोर्सेज या एनर्जी सोर्सेज जो कि रिन्यूएबल हों. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ख़राब नहीं करना चाहिए. आपको लॉन्ग टर्म में अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए. सच एज ग्रेटर स्ट्रेस ऑन वर्कर्स वुड लीड टू एग्जॉशन इफ़ दे आर फोर्स्ड टू वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स. Rather, they should be encouraged to learn some new skills in their jobs and they should be encouraged and taught to grow in the long run without exhausting themselves. Right? The net impact of economic growth is influenced by its rate, means adopted to achieve it, and distribution of its benefits. If the economy is growing very quickly, it's not sustainable. If it's growing slowly and at its own pace, then it's sustainable growth, means it's not exhausting all the resources. जल्दी जल्दी के चक्कर में आप बहुत कुछ रिसोर्सेज को ख़राब भी कर लोगे, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज भी करोगे, उसको आपने अवॉइड करना है. एंड यू हैव टू ऑप्ट फॉर स्लो सस्टेनेबल ग्रोथ. अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इनकम, decreased absolute poverty, improve environmental friendly technologies, higher revenue for firms, increased investment, reduce expenditure of government क्योंकि unemployment allowances, poverty allowance ये वो नहीं देना पड़ेगा, and higher tax revenue. कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ज़्यादा डिमांड होने की वजह से और शॉर्टेज होने की वजह से प्राइसेस बढ़ जाते हैं. फिक्स्ड परचेजिंग पावर. ठीक है. फिक्स्ड परचेजिंग पावर का मतलब है कि परचेजिंग पावर नहीं बढ़ रही लेकिन चीज़ें महंगी होती जा रही हैं. लैक ऑफ इक्विटी. पुअर कीप गेटिंग पुअर एंड रिच कीप गेटिंग रिच. एनवायरमेंटल डैमेज, increased inflation, poor exports, negative impact on current account balance आगे पढ़ेंगे. greater consumption of demerit goods. क्यों? demerit goods जो हैं वो सस्ते हो जाते हैं. reduced well-being of employees due to overworking and fast depletion of resources. Right? Next is then we have if productive capacity that increases in line with aggregate demand, more goods and services can be enjoyed. ठीक है. without an increase in prices. क्यों? aggregate demand बढ़ रही है, production भी बढ़ रही है, price नहीं बढ़ेंगी. this is
दिस कैन बी कॉल्ड एज स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ रहा कम हो रहा है, एंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, या हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ या फास्ट पेस इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, उसके अंदर रेट्स ऑफ थिंग्स फ्लक्चुएट अ लॉट, ठीक है ना। तो फ्लक्चुएशन किसी को भी पसंद नहीं है, स्टेबिलिटी पसंद होती है। फ्लक्चुएशन होगी तो हाउस होल्ड्स अपनी स्पेंडिंग कम करेंगे, कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी की वजह से कम हो जाएगी। जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो वो इकोनॉमी अच्छी नहीं समझी जाती। फ्लक्चुएशन ऑफ व्हाट? प्राइसेस, फ्लक्चुएशन ऑफ व्हाट? कॉस्ट्स, दोनों, ठीक है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ कैन जनरेट पोल्यूशन, ये कॉस्ट है, and cause environmental damage as well. However, it will lead to improved information and education. It will pressurize all the stakeholders या economic agents to care for the environment and provide the resources to do so. क्योंकि जो developed countries हैं, they are laying a lot of stress on renewable, sustainable energy, renewable energy, sustainable methods of production, and methods of production that allow less damage to the environment. Okay. Economic growth rate and national output, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंड नेशनल आउटपुट क्या डिफरेंट हैं या सेम है? लेट्स हैव अ लुक। अगर कंट्री का इकोनॉमिक रेट फॉल्स फ्रॉम 5% to 3%, आउटपुट विल स्टिल बी राइजिंग, ऑल्दो इट मे बी राइजिंग एट अ स्लोअर रेट, ठीक है। ये हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पहले 10 kg वेट लूज़ किया, इसके बाद 7 kg किया, इसके बाद 3 kg किया, यू आर स्टिल प्रॉस्परिंग बट एट अ स्लो रेट, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पहले 5% थी, लेकिन अब 3% है। इसका मतलब वो ग्रो तो कर ही रही है, ठीक है ना, लेकिन एट अ स्लोअर रेट। अच्छा, ये कुछ फिगर्स हैं। एंड what are the policies that can be used to promote economic growth? If the economy has spare capacity, the government can use expansionary fiscal or monetary policy. Expansionary fiscal policy में क्या होगा? टैक्स रेट कम हो जाएगा एंड इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी है, उसको यूटिलाइज़ करने के लिए मोर इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, और मोर इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए टैक्स को रिड्यूस करना पड़ेगा, सो दैट इट्स अ रिवॉर्ड फॉर द फर्म्स टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है ना। आगे इन्होंने यही लिखा हुआ है कि क्या करना होगा। इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड एंड इट विल एनकरेज फर्म्स टू इंक्रीज द आउटपुट, राइट। दिस विल इन टर्न रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। इट विल बाय मोर कैपिटल, फर्म्स विल बाय मोर कैपिटल ऑल्सो। क्यों? उनके पास एक कम इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और वो ले सकते हैं, एंड इट विल फर्म्स विल एक्सपैंड देयर प्रोडक्शन। द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज पॉलिसीज will be influenced by a number of factors such as households and firms may not spend more despite a lower rate of interest and lower taxes if the confidence in economy is low. If the rate of interest is already very low, there may not be much room to cut it further anyway. A very small reduction may have very little impact. कुछ इकोनॉमीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी बहुत लो है, तो गवर्नमेंट ये वाला मेजर तो यूज़ ही नहीं कर सकती कि टैक्स रेट इंटरेस्ट रेट को नीचे कर दिया जाए, ठीक है। अब अगर तो एग्रीगेट डिमांड इज़ इंक्रीजिंग ओवर टाइम विच इट विल, अगर तो पीपल आर एम्प्लॉयड, दे हैव गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बट इफ़ द कॉरस्पॉन्डिंग एग्रीगेट सप्लाई इज़ नॉट इंक्रीजिंग, right, there will come a time where you will reach a maximum level of output where you will not be able to increase the output, but prices will keep going up.
जैसे कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है ना, रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गई यहाँ आने के बाद, और फिर आउटपुट कांस्टेंट हो जाता है, सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, until and unless there is a right shift in the supply curve, तो क्या होगा, इस किस्म की जो चीज़ है वो it will lead to inflation and it will lead to recession. In the long run, economy can continue to increase the output only if it gets more resources, क्योंकि more resources होंगे तो aggregate supply भी बढ़ेगी. So हमें क्या करना होता है, गवर्नमेंट को क्या करना होता है, it has to take measures not only to increase demand but aggregate supply also. So demand side and supply side policies दोनों को implement करना होगा. For example, to increase the productive potential, government may seek to improve education and training. If successful, this measure will lead to rise in labor productivity and productive capacity. There is, of course, no guarantee that the supply side policy will work. Okay? तो इन पॉलिसीज़ की गारंटी नहीं होती कि सप्लाई साइड पॉलिसी काम करेगी, डिमांड साइड पॉलिसी काम करती है. क्यों? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ठीक है ना. सप्लाई साइड पॉलिसी में भी सब्सिडी दी जा सकती है, लेकिन इन पॉलिसीज़ का सक्सेसफुल होना और नहीं होना, इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स अदर देन द गवर्नमेंट इटसेल्फ. वी इन इकोनॉमिक्स ओवरली सिंप्लीफाई दीज पॉलिसीज़ एंड स्टफ, और हमें ऐसा लगता है कि जी गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. देर आर अदर फैक्टर्स इन्वॉल्व एज वेल, सच एज आपने टैक्स तो कम कर दिया है, लेकिन फर्म्स डू नॉट हैव एनी कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ द इकनॉमी, तो ये पॉलिसी टैक्स कम करने की बेकार हो गई ना, क्योंकि लोग तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे. ऑल्सो अगर आपने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है लेकिन पीपल डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर ऑफ द इकनॉमी एंड दे फील कि फ्यूचर में जाके भी हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम लोन को रीपे कर सकें, तो वो इंटरेस्ट क्यों लेंगे, ठीक है ना. सो द पॉलिसीज़, द सक्सेस ऑफ दीज पॉलिसीज़ डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, जिसको इकोनॉमिक्स में कंसिडर नहीं किया जाता, और ओवरली सिंपलिस्टिक वे में इनको बस वन साइडेड करके बता दिया जाता है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक growth.